Brother Sakhi to kindly make Madam also the co-host. Vice Principal of Al-Falah School. Samina Subhani. Samina Sultana Madam. Subhani. Subhani, sorry ma'am. Samina Subhani ma'am. Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. Asma ma'am, Assalamualaikum ma'am. Assalamualaikum ma'am. Asma Zahra ma'am. Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. Brothers, Safi, kindly unmute Madam's, Zahra Madam's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam. Walaikum Welcome ma'am. assalam. Nice to see you. जी मैम अपन थोड़ा वेट करेंगे मैम. It's 7:20. we'll wait for 5 minutes and I think Dr. Zubair will join us. Inshallah. जी इंशाल्लाह. Jazakallah ma'am. Jazakallah for joining us. Assalamualaikum Tehsin ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi Walaikum wabarakatuh. assalam ma'am. Walaikum salam. Thank you so much Fatima madam. Thank you so much Tehsin ma'am. Thanks a lot. Thanks for joining. May Allah bless you all. Assalamualaikum ma'am. Assalamualaikum ma'am. Walaikum salam. Please keep yourself on mute, all of you, please. Okay. Assalamualaikum ma'am. Walaikum Hello, Assalamualaikum ma'am. Walaikum assalam. Yes, ma'am. Should I begin? Asma ma'am, shall we wait for 2-3 minutes more ma'am? 66 participants. Alhamdulillah. Asma ma'am. I request Brother Safi to kindly unmute Dr. Zahra Tayyiba ma'am. Brothers. Yeah, madam, we are just waiting for Dr. Zubair to join us. Asma ma'am.
Assalamu alaikum everyone. We are just waiting for Dr. Zubair Sahab to join us, inshallah, within. Zen को एक्टिवेट कीजिए। Zen को अनम्यूट कीजिएगा। All right. Ma'am, Ji, ma'am. if we are about to begin, I'd first like to welcome all the speakers. Yeah, ma'am. Just 1 minute, ma'am. I will All right. take permission from Dr. Zahra Taiba, ma'am. Okay. Because, the host has to unmute, madam. All. And we are waiting for Dr. Zubair Sahab also. I think I saw him. He's here. 1 minute. Dr. Zubair. I read the name just now. Dr. Syed Zubair. He's here. Okay, inshallah. We'll start with this. Yes, ma'am. It's 733 with 96 participants, alhamdulillah. All right. So once we touch, I think we have the YouTube link also, ma'am. After 100, they can join YouTube also, and even Facebook. So I hope, madam, you have shared the invitation to all the parents. Yes, ma'am. Yes. YouTube link also. Alhamdulillah. Yes, we shared it with them. Okay. Please unmute Zainul Abidin. He is going to Assalamu alaikum. recite verses from the Quran. Muhammad Zainul Abidin. Assalamu alaikum. Uh, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। so, ma'am, shall I? Tessin, ma'am, shall I? Ma'am, you are muted. Tessin, ma'am, is muted. I think she's speaking, but she has to be unmuted. तहसीन मैडम आप अनम्यूट कीजिए। जी. हाँ हाँ अभी So, ma'am, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We welcome all the participants first of all. Alhamdulillah, good number 100, madam. Alhamdulillah, we have touched 100 in Zoom. Now you can join on YouTube and Facebook. Both the links madam has already shared with the parents, and inshallah the host also will share the links here. And I welcome Samina Subhani, madam, Vice Principal of Al Falah School, Diamond Hills, to kindly welcome our COVID relief team members. Welcome. Jazakallah khair, ma'am. Alhamdulillah, we are all gathered here. Thanks to the team COVID relief who accepted our request and decided to conduct this program for the parents and children of our school. I'd like to welcome on behalf of our director of Al Falah School, Dr. Fawzia Khan, and the principal, Madam Juwairiya Kazmi. I'd like to welcome the speakers, Dr. Zahra Taiba, MD, Managing Director, Salama Hospitals, Dr. Syed Ismail Zubair, MBBS MD, DNB COVID Relief Team Doctors, and schools educationists, co-host Mrs. Tehseen Sakina, senior educationist Mrs. Amkul Hai Fatima, educationist, Principal Mount Mercy Schools. Thank you, ma'am. Jazakallah. With you, our connection has been quite long, and you have always been a supporter, always with us. My pleasure. And I also thank all the members of the organizing committee. And we hope Allah Ta'ala will help us benefit all the listeners, all the participants, and Allah Ta'ala will reward you all who have who have shown concern to conduct such a program, which is the need of the hour. Let us begin our program. I'd like to invite Muhammad Zainul Abidin
to start the Assalamu program with a alaikum few wa verses from the Quran. Yes, Zain, you can start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Jazakallah khair, Zain. Zainul Abidin happens to be the head boy of Al Falah School. Ma'am, I'm muting myself. MashaAllah, ma'am. Jazakallah, Samina, ma'am, for welcoming us all. Myself, Taisin Sakina, the moderator for today's session. A brief introduction of Team COVID Relief. It is led by doctors and educationists. It is operating 24/7 with the helpline number 798-137-5626 with doctors, specialists, and paramedics to help guide people on COVID-19 through teleconsultation. At the same time, it is important to have awareness in the community. In this regard, a group of educationists led by Dr. Zahra Taiba Madam, Mrs. Amtul Hai Fatima Saiba, Mrs. Nasrin Fatima Saiba, Mrs. Taisin Sakina Saiba, and Mrs. Khatija Saiba, and Professor Alia Begum Saiba have joined the doctors panel to support and penetrate into the community and spread awareness through lectures and question answer session. Alhamdulillah, COVID relief team has also started Zoom clinic daily from 9 p.m. to 10 p.m. with free consultation by eminent doctors, Dr. Abdul Khalik Sahab, Dr. Zahra Taiba Saiba, along with the panel of doctors. In this regard, on behalf of COVID relief team, I welcome our speakers for today's section, Dr. Asma Zahra Saiba and Dr. Syed Ibrahim Zubair Sahab. Dr. Asma Zahra Taiba ma'am has completed her MBBS in 1996 from Deccan College of Medical Sciences, Hyderabad. Madam has done her fellowship in emergency medicine from Apollo Hospitals, Hyderabad, in coordination with Royal College of Surgeons, UK in 2002. We are very fortunate to be with Madam. Madam has also done MD in 2017 in anatomy from Deccan College of Medical Sciences and Avesi Hospital, Hyderabad. Dr. Asma Zahra Taiba ma'am is also the managing director of Salama Hospitals, Hyderabad. It's a multi-speciality 25-bedded hospital, maternity and nursing care, laboratory, ultrasound scan center, and pharmacy. Dr. Asma Zahra ma'am also worked as senior resident, Government Medical College, Nizamabad District, Telangana State. Not only in the medical field, I say madam is 360 degrees oriented. Dr. Asma Zahra ma'am is also a social activist, a women rights activist associated with poverty eradication program. Jazakallah ma'am, and Alhamdulillah, may Allah bless you madam. And we also have for today's section Dr. Syed Ibrahim Zubair Sahab, MBBS, MD, DNB. Sir is also assistant professor of anesthesiology, Shadan Institute of Medical Sciences, consultant, intensivist, maternity and children's hospital, Dammam, KSA. We welcome Dr. Asma Zahra Taiba ma'am and Dr. Zubair Sahab as speakers for today's section. I welcome you, madam. So we'll start with Dr. Asma Zahra Taiba ma'am. Welcome, ma'am. Yes, Jazakallahu khair. Dr. Zubair can have a talk and afterwards I will also speak.
Okay. So we will allow Dr. Syed Ibrahim Zubair Sahab, who is an anesthetist, to address the students, parents of Al Falah School. Inshallah Ta'ala, our session today will be very fruitful, and it will give work to create awareness among the students, inshallah. Dr. Syed Ibrahim Zubair Sahab, अगर आप शुरू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम अस्सलाम जी सर. जी, वालेकुम अस्सलाम. जज़ाकल्लाह सर. वालेकुम अस्सलाम. Respected Zahra ma'am, principal madam, Mrs. Tehsin Sakina madam, and all seniors here, or senior educationists, parents, and students here. Assalamu alaikum. मैं डॉक्टर जुबैर, मैं तो शादान में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और माशाल्लाह रिसेंटली भी जहरा मैडम के साथ अटैच हुआ हूँ कोविड रिलीफ टीम के साथ. इससे पहले भी दूसरे ग्रुप में अल्लाह के फजल से. तहसीन मैडम सुने आ रहा है मेरा? जी 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 सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज कंटिन्यू. So it's better I speak in English, or I think madam will tell us. Amina ma'am, how do you want it? Urdu? English. I think the parents and the children, what they are. Yeah. True. You can Urdu is speak better. English. We interact with our children in English, both if possible. If possible, a little explanation in Urdu also. उर्दू Parents are रहेगा also तो there. थोड़ा now, better sir. रहेगा. Yeah. So I think I'll go ahead in Urdu only. Okay. Okay. तो इससे पहले भी मैं आई थिंक लास्ट जब कोविड शुरू हुआ है जब से ही मैं आई थिंक अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व हूँ, और वी आर डूइंग सो मेनी अदर थिंग्स विद अदर ग्रुप्स लाइक आई वाज इन्वॉल्व विद डेयर एंड इखरा फाउंडेशन एंड इवन एक्सेस फाउंडेशन आल्सो. सो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े पहले अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए हैं, और अब जहरा मैडम इंशाल्लाह चांस दिए हैं. शुक्रिया मैडम ये स्कूल्स के लिए अवेयरनेस के लिए. आई थिंक स्कूल्स को पेरेंट्स को अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक यही सोर्स रहेगा जो आई थिंक अदर सोसाइटी को फैलेगा यहाँ से इंशाल्लाह. सो आई थिंक मैं एक थोड़ा ही टाइम लूँगा, मैक्सिमम टाइम आई थिंक पेरेंट्स के क्वेश्चंस और उनके डाउट्स सॉल्व करने में रहेगा, और वही ज़्यादा अच्छा रहेगा. और आजकल आई थिंक माशाल्लाह जब से कोरोना दौर शुरू हुआ है, जब से आई थिंक सबको डॉक्टर से ज़्यादा सबको व्हाट्सएप से सोशल मीडिया से बहुत चीज़ें मालूम है. तो मैं बस बेसिक चीज़ें बोलूँगा. आई थिंक मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा आई थिंक चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा एक 5-6 पॉइंट बोलूँगा जिसके लिए आई थिंक पेरेंट्स को बेनिफिट होगा. तो मैं भी मैटरनिटी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एज अ इंटेंसिविस्ट और एनेस्थेटिस्ट काम किया हूँ. सो ऐसे अब कोरोना के दौर में बहुत सारे सीरियस केसेस आए हैं जिसमें पेरेंट्स डिस्टर्ब हैं, साथ में चिल्ड्रंस जितने भी आ रहे हैं थोड़े इमरजेंसी में हैं, थोड़े इलेक्टिव केसेस हैं. कोरोना की वजह से थोड़े इलेक्टिव जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे टॉन्सिल बेसिक चीज़ें हैं वो पोस्टपोन हो रही जा रही हैं. उसकी वजह से बहुत पेरेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं. थोड़े लोगों के लिए इवन आई थिंक नॉर्मल चीज़ें जैसे सर्कमसिशन वो होते हैं वो भी आई थिंक इलेक्टिवली नहीं करा रहे हैं बहुत लोग, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत हॉस्पिटल डरे हैं, पता नहीं किसे कोरोना है किसे नहीं है. मगर आई थिंक इंशाल्लाह ये दौर आगे बहुत ख़त्म हो जाएगा. इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा ये चीज़ें. इंशाल्लाह हम इसे अल्लाह में हमें अल्लाह से दुआ है कि ये सब पार करा दे. अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोग अपने पेरेंट्स को समझना ये है कि अब आई थिंक बच्चे घर पे हैं, और घर पे होने की वजह से आई थिंक उन लोग की एक्टिविटीज़ और जितने भी होते थे पहले स्कूल में जाना, फ्रेंड्स से मिलना, सब चीज़ ये बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से टेम्पर टेंट्रम्स और इरिटेबिलिटी बहुत है. और पेरेंट्स भी बहुत आई थिंक बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं कि बाहर मत जाओ, मिलो मत किसी से. और उसी की वजह से आई थिंक थोड़े पेरेंट्स कन्वे कर पाते हैं बच्चों को, थोड़े नहीं कर पाते हैं. अब और नेक्स्ट थिंग क्या है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं जिसकी वजह से थोड़े बच्चे कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, थोड़े नहीं कर पा रहे हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से आई थिंक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ पे असर हो रहा है. और नेक्स्ट थिंग आई थिंक द स्क्रीन टाइम, आई थिंक मोबाइल और ये लैपटॉप से जो अब आई थिंक गैजेट्स अवेलेबल है उसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ भी कम हो गई हैं. और आई थिंक नाउ अब कोरोना एरा की वजह से बाहर नहीं जाना पड़ा है तो ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम पे हो रहा है, उसकी वजह से भी बहुत इरिटेबिलिटीज़ आ रही है चिल्ड्रन में. बस मैं 6 पॉइंट बोलूँगा जो आई थिंक पेरेंट्स फॉलो करना चाहिए. सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट ये है कि प्रोवाइड एश्योरेंस व्हेन एवर नीडेड. अब ये एश्योरेंस का मतलब एक ही चीज़ है कि चाहे सिचुएशन ऐसा है कि घर में हर एक कोई ना कोई घर में कोई कोविड
से अफेक्टेड है, चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, कोई भी हो, और जिसकी वजह से पेरेंट्स और घर के बड़े लोग परेशान होते हैं, और वो ये चीज़ बच्चे नोटिस करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग को भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, कन्वे नहीं करते हैं बच्चों को, क्योंकि ये बच्चे नहीं, ये बीमारी बच्चे पर नहीं समझ सकते, ऐसे सोचते हैं। मगर आई थिंक आजकल का जनरेशन कुछ और है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, और अगर आप नहीं बताएंगे वो खुद इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, और जिसकी वजह से उन्हें नेगेटिव न्यूज़ मिलेगी। तो इससे अच्छा है कि हमें उन्हें खुद बताना चाहिए कि क्या है कोरोना, किस कैसा फैलता है, क्या होता है, और अगर घर में किसी को अफेक्टेड है तो उनसे दूर क्यों रहना है, कैसे प्रिकॉशंस लेना है, और एश्योरेंस भी देना है कि भाई ठीक हो जाएंगे, अल्लाह पे भरोसा रखें और इबादत करें, और पॉजिटिव चीज़ें देंगे, तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड इंटरेक्शन विद द पेरेंट एंड चाइल्ड। और एक सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उनकी चाइल्ड्स एंग्जाइटी, जो बोल रहा हूँ, चाइल्ड्स एंग्जाइटी क्यों हो रही है, क्योंकि अब 3-4 महीने से घर पे हैं बच्चे, नो इंटरेक्शन विद एनी अदर पीपल, अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है, बाहर नहीं जा सक रहे हैं, ना अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, जो भी हो रहा है सिर्फ स्क्रीन टाइम हो रहा है, नहीं तो टीवी देख रहे हैं घर पे। अब ये चीज़ की वजह से ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, और इन दी एंड अराउंड न्यूज़ डालेंगे तो आप यही, कोई डेथ्स बोलेगा, कोई रिकवरीज बोलेंगे, कोरोना केसेस हर जगह यही चल रहा है, घर में बातचीत करेंगे भी बड़े, यही हो रहा है। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है बच्चों को, उसके लिए एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और ये एंग्जाइटी को पेरेंट्स को डील करना आना चाहिए, और बहुत सॉफ्टली समझाना चाहिए और तरीके से समझाना चाहिए, बल्कि गुस्से से और एंगर से, और उससे आई थिंक और बात बिगड़ सकती है, और इट बी अफेक्टिंग द चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ। और एक चीज़ पेरेंट्स को यही चाहिए कि इंडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें बच्चों को। इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे कि अब चाहे ये कोई गेम्स रहो, या इवन देयर इज गेम्स लाइक चेस, या नहीं तो मोनोपोली, जैसे भी जो भी गेम्स हैं जिसमें आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो, तो ताकि एक अच्छा हेल्दी माहौल रहो घर में, और ये सब चीज़ें जिससे बच्चे मेंटल अफेक्टेड ना हो। और एक चीज़ है, इंशाल्लाह उनको अब ये स्क्रीन टाइम, तो आई थिंक वन ऑफ द पेरेंट्स, आई थिंक एवरीवन इज इन्वॉल्व विद आइदर ऑनलाइन क्लासेस बच्चे, या नहीं तो दे आर इन्वॉल्व समथिंग एल्स, आइदर गूगल, ये वो सब चीज़ कर रहे हैं। बट आई थिंक फॉर प्रॉपरली यूज़ करने के लिए गैजेट को, आई थिंक दे शुड बी इन्वॉल्विंग विद देयर फ्रेंड्स। आई थिंक वीडियो चैट जैसा हो रहा है जूम का, और एनी अदर थिंग, अपने फ्रेंड्स को आई थिंक इफ दे आर नॉट एबल टू मीट पर्सनली और फिजिकली, वो चाहिए कि वो लोग अपने वीडियो चैट्स के साथ अपने फ्रेंड्स को बात करें, तो आई थिंक दे विल हैव एटलीस्ट अ मेंटल रिलीफ, एंड मेंटली डिस्ट्रेस नहीं होंगे बच्चे। और एक थिंग इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, दे शुड हैव अ क्लियर इन्फॉर्मेशन ऑफ एवरीथिंग। कभी ना सोचे कि बच्चा छोटा है, बच्चे को नहीं, ये नहीं मालूम होना चाहिए, ये नहीं मालूम होना चाहिए, ये क्या हो रहा है, आईसीयू में है, कोरोना क्या है, ये चीज़ बोलेंगे तो बच्चा गलत लेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं सोचिए, बच्चे आजकल माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है, बल्कि मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा पेरेंट्स के गैजेट्स बच्चे ही हैंडल करते होंगे, तो माशाल्लाह आप अगर नहीं बताएंगे तो भी वो इनडायरेक्टली मालूम करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपना बच्चे के साथ रैपो बनाएं, और आप बहुत ही अच्छी तरह एक सिंपल वे में बच्चे को कोरोना के बारे में समझाएं, या कोई भी चीज़ अपने घर में कोई भी अगर सीरियस है, कोई बीमार हैं, तो उनके बारे में बताएं, वो बीमारी के बारे में बताएं। तो आई थिंक इट विल बी मोर ईजियर फॉर द पेरेंट टू टेल देम, टू गाइड देम कि प्रिकॉशंस क्यों लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट चीज़ ये इम्पोर्टेंट है कि आई थिंक हमारे टीचर्स हुए तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर स्कूल की ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं। आई थिंक पेरेंट्स को भी उसमें साथ देना चाहिए, घर में भी लर्निंग सेशन रहना चाहिए। मैक्सिमम पेरेंट्स आई थिंक उनके ड्यूटी टाइमिंग्स भी आजकल कम है कोरोना की वजह से, सब चीज़, तो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम रहें, उनके होमवर्क्स में, लर्निंग में साथ दें, बहुत अच्छा रैपो मिलेगा, और इंशाल्लाह उनको कुरान की, हदीस की तरबियत दें, नमाज की तरबियत दें, सब चीज़ दें। तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ा एक आई थिंक प्रॉब्लम जैसा आप समझे, प्रॉब्लम भी दिया है, बट एक आई थिंक एक पॉजिटिव पॉइंट भी दी है, जिससे हम अपने फैमिली के साथ और अपने बच्चों को बहुत अच्छी हिदायत दे सके। इंशाल्लाह इससे इंशाल्लाह जज़ाए खैर हो इंशाल्लाह। अब आई थिंक मैं डॉक्टर ज़हरा तैयबा मैडम को बोलूँगा कि वो कुछ ऐड करें इंशाल्लाह। Excuse me, sir. Your voice is very low. Oh, my voice is low. No, sir. It's very low, sir. Okay. मैं वही इसलिए Might be problem at your end. It is very clear.
Taisin madam, it is clear to you? Yeah, it is clear. No, sir. No, doctor, no problem. Probably the problem is there. Your voice is clear. Okay. We can continue. So, We can continue. Okay, shall I? So I think I have told the 6 points, or shall I repeat it again? Samina ma'am. Jazakallah. Thank you, Sarah madam. Please, you can continue. We'll after that we'll solve the doubts of the parents. Okay, thank you, Jazakallah, Dr. Zubair. It was very nice to have you. And आपने जो बातें बताई हैं बच्चों के लिए खास तौर पे it's very important. Children must be taken on board in this pandemic. उन लोगों को अपने साथ जोड़ना है और उन लोगों को उनके साथ पेरेंट्स को बैठकर डिस्कस करना है, which is a very important takeaway point from your speech. Alhamdulillah, I'm very much grateful to the management, to the staff, and to our team of educationists who are actively organizing sessions every day. MashaAllah. और आज अल-फलाह स्कूल के काफी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बिफोर टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब लॉग ऑन करके थे जूम में, which is something very positive. It shows your आपका जज्बा जो है, आपका जो शौक है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें इससे रिफ्लेक्ट होती हैं. और मैं बिल्कुल एक 10-15 मिनट्स का आप लोगों के सामने टॉक रखूंगी. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी अवेयर. और थोड़ा सा हम लोगों को इस बीमारी को समझना चाहिए. और जैसा कि आप सब जानते हैं कि टुडे वी आर फेसिंग अ पैंडेमिक. इट इज अ वायरस, इट इज अ RNA वायरस. और वायरस और बैक्टीरिया या कोई भी दूसरे पैरासाइट्स में जो फर्क होता है, स्टूडेंट्स पढ़ते भी होंगे कि वायरसेस का अपना कोई सेल वॉल, अपनी बॉडी, अपनी सेल बॉडी नहीं होती. वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं हमारे सेल्स को, और उसके अंदर एंटर होके जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन में से एंटर होके जो हमारा न्यूक्लियस होता है वहां तक पहुंचते हैं और बॉडी के सेल्स को भी डैमेज करते हैं. एंड दे इनहेबिट इन द होस्ट. यानी अब इस वक्त कोरोना वायरस जो है, इसका नाम कोरोना रखा गया क्योंकि इट्स अ सर्कुलर क्राउन टाइप विथ स्पाइक प्रोटीन्स. तो ये जो कोरोना वायरस है ये हमारे जिस्म में दाखिल हो रहा है, पर्सन से पर्सन कांटेक्ट से. कंटेजियस डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है. और अब हम ये भी जानते हैं कि ये जो बीमारी है ये डायरेक्ट हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग है, लंग्स हैं, हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है. तो आई विल जस्ट शेयर सम स्लाइड्स सो दैट वी गो इन ऑर्डर एंड अवर स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे, दे विल जस्ट हैव एन आइडिया व्हाट इज कोरोना वायरस, कोविड-19. ये एक्रोनिम है, हमने इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया है डॉक्टरों ने. कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019 को कोविड कर दिया और कोविड-19 इसका नाम रखा गया. और इसमें जो मेन सिम्टम्स हमको देखते हैं, इफ वी कैन हैव द फर्स्ट स्लाइड प्लीज. स्क्रीन शेयर का ऑप्शन मैडम के पास है, इसके पास है. होस्ट ब्रदर सब होस्ट तहसीन मैडम, कैन आई सेंड यू द, आई एम सेंडिंग इट टू. Okay. Is there, ma'am? Displayed? Asma, ma'am, is it displayed? Yes, it is displayed now. Okay. तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो बीमारी है इसमें खांसी होती है, बुखार आता है, फटीग, थकन होती है, बॉडी पेन्स होते हैं. इसके साथ साथ जो है दम चढ़ता है, दम चढ़ने की शिकायत, दिस इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विच इज वेरी यूनिक. अक्सर आप सुन रहे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अरेंजमेंट्स हो रहे हैं. इसके साथ साथ जो है बलगम भी आता है और लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल. ये बहुत ही यूनिक पेकुलर इसके फीचर्स हैं. अब क्योंकि हम सीजन से गुजर रहे हैं, बारिश का सीजन है, मानसून सीजन है, बहुत सारे दूसरे फीवर्स भी हैं, जैसे वायरल फीवर्स भी रहते हैं, जनरल वायरल फीवर्स. इसके साथ साथ मलेरिया है, टाइफाइड है. तो ऐसे वक्त में डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये कौन सा बुखार है, कोरोना का है या दूसरा. लेकिन हम लोग सब मिलके कोशिश ये करते हैं, मतलब एक हमने प्रोटोकॉल डॉक्टर्स बनाया है, हर फीवर को बहुत एहतियात करो. हम लोग सब मिलके ये सोचें कि हर बुखार अगर हो तो अलर्ट हो जाएं, और हम जब तक
के पहचान ना हो, till that we know what is, till we detect it is, जबकि दूसरे दिन तीसरे दिन आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, फिर डायग्नोस होती है, कोई अलामत कोई बीमारी आने के बाद सिम्पटम्स के जाहिर होने तक 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। जब तक हम वेस्ट ना करें बल्कि पहले दिन से ही एहतियात करना शुरू कर दें और कोशिश क्या करें, टेम्परेचर को हाई होने ना दें, हाइड्रेटेड रहें, पानी अच्छा पिएं, बुखार अगर गोली से नहीं उतर रहा है स्पॉन्जिंग करके बुखार को उतारें, रेस्ट करें। अगर आप कहीं जा रहे हैं जॉब के लिए, काम के लिए, किसी काम के लिए, अगर बदन दर्द कुछ भी महसूस हो रहा है तो प्लीज डोंट गो एनीवेयर। आपका काम क्या है कि आपको अपने आप को टाइम देना है। हम लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको जो जिस्म दिया है, हमारी बॉडी, ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए नेमत है। हमको इस नेमत की कदर करना है। वी हैव टू वैल्यू आवरसेल्व्स and we have to give time also. So we should not panic, we should not get scared. Any symptom that we are noting, हम लोग पहले alert हो जाएं और जिसको बुखार आए उन्होंने मास्क पहन लें और घर वालों से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन के माने क्या होते हैं, थोड़ा सा दूर रहें, अलग कमरे में चले जाएं, अलग टॉयलेट और बाथरूम यूज करें, अलग प्लेट, अलग बर्तन, अलग स्लीपर, और पूरी तरीके से डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो घर में किसी एक को अगर कोई प्रॉब्लम भी हुआ, सारे घर वालों को ये प्रॉब्लम नहीं होगा। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें देखिए आपको टेस्ट करवाना है, टेस्ट के लिए लेट नहीं करना है। अक्सर लोग डरते हैं, डर के ये समझते हैं कि भाई हम किसी को पता चलेगा हमको कोरोना वायरस है तो मोहल्ले में मालूम हो जाएगा, अपार्टमेंट में मालूम हो जाएगा, खानदान में पता चलेगा। एक सोशल स्टिग्मा भी इसके अराउंड अटैच हो, जिसकी वजह से पेशेंट्स जो सफर हो रहे हैं बहुत जल्दी आगे बढ़ के आके अपने करीबी लोगों तक भी अपनी बात शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखिए आप, ये सब इलिटरेसी है, यानी इल्म की कमी है, जहालत है, जिसकी वजह से इस तरह की चीजें समाज में सर्कुलेट हो रही हैं। अगर कोई बीमार है तो उसका कसूर क्या है? अगर कोई बीमार है तो इज ही एट फॉल्ट? अगर कोई बीमार है तो हमारा काम उससे हमदर्दी करना है, उसकी हेल्प करना है, ना कि उसको ब्रांड करना है, ना कि उसको बदनाम करना है। तो हम लोगों को अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमको फौरी फोन करके डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन करना चाहिए। हमारी टीम कोविड रिलीफ की तरफ से भी एक हेल्पलाइन चलाई जा रही है, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, डॉक्टर्स को फोन करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपको घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है और आपको हेल्प मिल सकती है। और आपको फौरी सेकेंड डे या फिर थर्ड डे तक, फर्स्ट 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना है और जो टेस्ट बताए गए टेस्ट कराने से बिल्कुल पीछे ना हटें। टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के भी टेस्टिंग सेंटर्स हैं, प्राइवेट लैब्स भी हैं, और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए हमको पता नहीं चलेगा कि क्या व्हाट इज द सिचुएशन। अगर रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो घर के सारे लोग भी एहतियात करना रोक सकते हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता रिपोर्ट पॉजिटिव आई, हरगिज हैबत ना खाएं, पैनिक ना हो। इस मीटिंग में मैं सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको बताना चाहती हूँ, कोरोना वायरस को हम काबू पा सकते हैं। ऑल डॉक्टर्स, हम लोगों ने यही यानी एनालिसिस किया है कि हमारी कम्युनिटी में अवेयरनेस अगर होगा अर्ली, यानी इब्तिदा में अगर हम लोग सीरियस रहेंगे तो बाद में हमको परेशान होना नहीं होगा। आज जो सोसाइटी में हो रहा है, आई विल टेल यू व्हाट इज हैपनिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं कि शुरू में नेग्लेक्ट कर रहे हैं, शुरू में लापरवाही भी कर रहे हैं। शुरू में हम कुछ सोशल गैदरिंग्स या कोई सी का इंतकाल हुआ तो विजिट करने हम चले जा रहे हैं, घर से बिला वजह बाहर निकल रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इनिशियली वी आर नेग्लेक्टिंग अवरसेल्व्स। फिर उसके बाद जब सिम्टम्स माइल्ड से मॉडरेट से सीवियर की तरफ जाते हैं, यानी 80% लोग तो अगर एहतियात करें, अलर्ट रहें, अवेयर रहें, एजुकेटेड रहें तो कोरोना वायरस को काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग ना शुरू में गफलत बरते, क्योंकि ये जब लंग को डैमेज करता है, लंग से हमारे दूसरे ऑर्गन्स भी इससे डैमेज होते हैं। तो अगर हम लापरवाही करें, जो मॉडरेट से सीवियर और बहुत ही ज्यादा जब सीरियस पेशेंट्स हो जाते हैं, सांस फूलने लगती है या कुछ बुखार कम-बिल नहीं हो रहा है, चेस्ट पेन है, सीने पे दबाव है, थकन बहुत हो रही है, ऐसे टाइम पे फिर आप जब भाग रहे हैं हॉस्पिटल को,
आपको बिल्कुल हाई लेवल केयर में एडमिशन लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स प्राइवेट में देना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस मीटिंग में आप लोग सब इब्तिदा में अलर्ट रहिए और एजुकेट करिए, सही एजुकेशन लीजिए। कई रॉन्ग बातें भी इस व्हाट्सएप में सर्कुलेट होती रहती हैं, उसकी तरफ तवज्जो मत दीजिए। एक नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें सांस अगर बुरी तकलीफ हो तो किस तरह के पोजीशंस हैं। थर्ड स्लाइड प्लीज, इफ यू कैन गो। इसमें देखिए आप थोड़ा सा पेशेंट्स को सांस लेने तकलीफ होती है तो पेशेंट करवट लेटें, झुकें, फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन, बैकवर्ड लीनिंग पोजीशन, तो ये सारे पोजीशंस बताए गए हैं। और करवट लेटना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबको बताऊंगी कि हम लोगों को ब्रीथ लेना और ब्रीथ आउट करना, यानी थ्रू द नोस्ट्रिल्स वी आर ब्रीदिंग इन, थ्रू द माउथ वी आर ब्रीदिंग आउट। एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप में ब्रीद इन कर रहे हैं, 2 स्टेप्स में ब्रीद आउट कर रहे हैं, सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये एक्सरसाइजेस हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं पहले भी बताई हूँ ये लंग्स की डिजीज है, फेफड़ों की बीमारी है। तो हमारे जो लंग्स हैं वहाँ टिश्यू, वो जो वहाँ पे बिल्कुल जो सेल्स होते हैं वहां पे एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये एक्सचेंज नहीं हो पाता तो हमारा लंग डैमेज होता है। इसलिए हमारे लंग्स को बिल्कुल इन्फ्लेटेड रखना, फुला के रखना, जैसा बलून पूरी तरीके से ब्लोन्ड अप रहे तो कितना हमको फायदा होगा। हम लोगों को अपने लंग्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है, हम जो अपने घरों में है, कमरे हैं, हमारे दरवाजे, हमारे ड्राइंग रूम्स, हर जगह हमारा वेंटिलेशन ओपन रहना चाहिए। कुछ लोगों में ऐसा भी डर है कि खिड़कियां बंद करके रख रहे हैं कि इट्स एयरबॉर्न डिजीज, पूरा घर बिल्कुल पैक करके रख रहे हैं। जी ऐसा मत कीजिए, आपके घर में खिड़की, बालकनी से, दरवाजे से हवा आना भी चाहिए, जाना भी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, धूप आना चाहिए। और आप ये मत समझिए कि बाजू के अपार्टमेंट में अगर कोई पेशेंट है तो आपके पास ये आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करें, अपने अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं स्लीपिंग पोजीशंस भी कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। 1-2 स्लाइड्स आगे करके वो करिए। तो हम लोगों को अपना खुद का ख्याल अच्छे से करना है। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताती हूँ, डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं परहेज क्या है, परहेज क्या है। प्लीज परहेज नहीं है, ये प्रोटीन्स ज्यादा लेने की हम सबको बहुत जरूरत है इस वक्त। परहेज आपको, यानी कोरोना का कोई परहेज नहीं है, बल्कि परहेज ये है कि दावतें मत रखें, बर्थडे पार्टीज मत रखें, किसी का इंतकाल हो तो ना जाएं, मिनिमम लोग गुस्ल तदफीन कर दें, और जिसके घर में इंतकाल हो बाकी के सारे लोग 14 दिन क्वारंटीन करें। यही इस बीमारी का परहेज है। लेकिन ग़िज़ा में आप अंडा खाइए, प्रोटीन्स खाइए, और एनिमल प्रोटीन्स और वेजिटेबल प्रोटीन्स आप लीजिए, मिल्क लीजिए, आप अच्छी डाइट लीजिए, पानी ज्यादा पीना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। लॉकडाउन की वजह से घरों में टाइम पे नाश्ता नहीं हो रहा है, लोग रात में जग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। ये हमको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, हमको अपने डिसिप्लिन में आना है, और हम लोगों को अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। मदर्स को चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट दें। अपने घर के जो लोग हैं, घर के मेंबर्स में जो सीनियर मेंबर्स हैं आपके घर के, मतलब आपके नानी दादी, आपके घर में कोई शुगर पेशेंट, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसी तरीके से आपके घर में कोई यानी कैंसर के मरीज हों या फिर डायलिसिस के पेशेंट्स हों, ये सब यानी इनकी इम्यूनिटी कम होती है। और इम्यूनिटी आई थिंक स्टूडेंट्स नो वेरी वेल, कि हमारी बॉडी में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो पुलिस वाले हमारे बॉडी के होते हैं, जैसा एक कंट्री के डिफेंस के लिए बॉर्डर्स फॉर सिक्योरिटी फोर्स, रिजर्व फोर्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी एक अपनी अंदर से जो एनर्जी, हमारी जो ताकत और शक्ति है, वो मजबूत रहना चाहिए। क्योंकि कोरोना की कोई अभी तक दवा नहीं मिली, तो अगर खुदा ना खास्ता हमको कोरोना हो गया तो हम लोग खुद फाइट आउट करें, हम लोग खुद फाइट करके कोरोना का मुकाबला करें। वी हैव टू फाइट कोरोना बाय आवर इम्यूनिटी। तो हमारा डाइट, हमारा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हमारा डाइट न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, परहेज की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
घर के बड़ों का अच्छा हम ख्याल रखें, हमारे स्लीप बराबर हो, हमारी यानी जो लिक्विड इनटेक है वो बराबर हो, और इसके साथ साथ हमारे जो हाई रिस्क पेशेंट जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं, इन्हें हमारे घर के वो मेंबर्स जो रिस्क जिसको खतरा है कि इनको लग सकता है, क्योंकि ये पेशेंट्स को अगर कोरोना की बीमारी हो तो इनके ऑर्गन्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो बहुत ज्यादा इन लोगों को यानी जल्दी ये बीमारी फैलेगी और हम बचा नहीं पाएंगे। तो इस वजह से यानी यंगस्टर्स को आगे बढ़ के बाहर जाके कुछ काम है करके आना चाहिए। अब्बा को, दादा को बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं जाने देना चाहिए। और जितना हो सके आइंदा महीना 2 महीने हम लोगों को सबको पूरे रूल्स जो कोरोना के एहतियात के रूल्स हैं वो पूरे हम फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला हम सब मिलके ये कोशिश करेंगे, अर्ली डिटेक्ट करेंगे सिम्टम्स को, अर्ली कंसल्टेशन करेंगे और अर्ली टेस्टिंग करवाएंगे। इस बीमारी को इब्तिदा में हम पकड़ सकते हैं और ये हमको करना है। यही हमारे इस प्रोग्राम का मैसेज है आप सबके लिए। हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू की जो 3 हफ्ते से 24/7 हमारी हेल्पलाइन पे कॉल्स आ रहे हैं। लोग क्वेरीज के लिए फोन करते हैं, कभी घर में किसी का इंतकाल हुआ तो परेशान होकर फोन करते हैं और हम उनको एश्योरेंस भी देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं। डेथ और बिल्स के बाद लोग कुछ जानना चाहते हैं वो भी हम समझाते हैं। मेडिकल कंसल्टेंट भी टेली कंसल्टेशन के जरिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको व्हाट्सएप पे प्रिस्क्रिप्शन भी हम भेज रहे हैं और उनके इलाका जिस जगह लोकेलिटी पे वो रहते हैं नियर बाय टेस्टिंग सेंटर्स भी हम उनको बता रहे हैं ताकि इजी हो, वो लोग डिले ना करें। आप लोग भी इस हेल्पलाइन पे कभी भी अगर कुछ क्वेरी हो, जान चाहते हो, जरूर रुजू करें। आवर प्रोग्राम्स इंटेंशन इज टू ब्रिंग अवेयरनेस इन आवर पीपल। डरिए मत, खौफ मत खाइए, बीमारी भी अल्लाह की तरफ से और इंशाल्लाह शिफा भी अल्लाह ताला देगा। वी हैव टू बी बोल्ड, स्ट्रॉन्ग टू फेस दिस पैंडेमिक। हमारा हेल्पलाइन नंबर 7981375626, इस नंबर पे आप 24/7 कभी भी बात कर सकते हैं। 2 दिन से हम लोगों ने एक और जूम क्लिनिक भी स्टार्ट की है। ये रात में 9 बजे से 10 बजे तक एक आईडी दिया गया है, आईडी यही नंबर है 7981375626 जूम क्लिनिक। इसका भी आईडी अगर आप शेयर कर देंगे तो बेहतर होगा। और आपको जो एंटर होना है पासवर्ड Z कैपिटल है, जूम क्लिनिक आपको एंटर करना होगा। तो डेली ये 9 to 10 रहेगा जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जूम मीटिंग में जैसा आज प्रेजेंट है अवेलेबल रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोग इसमें जुड़ेंगे तो कुछ भी अगर आपको जानना है प्लीज कनेक्ट विद द डॉक्टर्स एंड द टीम ऑफ डॉक्टर्स आर रेडी टू हेल्प यू। देयर आर so many सीनियर्स डॉक्टर्स, देयर आर मेनी यंगस्टर्स जो बिल्कुल फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और न्यूली पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, सब एंथुजियास्टिक हैं। वी मस्ट डू समथिंग, हम सब करना चाह रहे हैं। तो लेट अस ऑल बिकम अ टीम, द डॉक्टर्स, द स्टूडेंट्स, द टीचर्स and the members of the society to defeat COVID and inshallah we will do it. अब क्योंकि बकरीद भी आ रही है, एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ। बकरीद के टाइम पे भी प्लीज नो सोशल गैदरिंग्स, प्लीज अवॉइड सोशल गैदरिंग्स, क्योंकि जैसे हम लोग ज्यादा मिलेंगे नानी के घर, दादी के घर, भाई के घर, तो फिर क्या होगा, हमारे बर्तन भी हम सब एक दूसरे के कभी एक्सचेंज हो जाते हैं, ग्लास, प्लेट्स, एंड उसके बाद फिर अगर बुखार आना शुरू हो तो पूरी फैमिली अफेक्ट होती है। सब्र कीजिए, इस बीमारी को समझिए और इससे खुद बचिए, सबको बचाइए। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। Jazakallah, ma'am. It was in depth for the students, and students are very enthusiastic. Alhamdulillah. Many questions from them regarding Corona. It's they are feeling, yes, madam, it is very dangerous. so cute of them. And over to you, Amtul Fatima madam, for the question answer section. And we have alhamdulillah 60 plus on YouTube also, and they are also typing some questions here. So inshallah I'll be reading out from the YouTube channel also. So Amtul Fatima madam, I request you to kindly take over. Yes ma'am. अनम्यूट कीजिए मैडम। She has to be unmuted. अनम्यूट। Yeah. जी। अमतुल हाई मैडम, अनम्यूट कीजिए। Ma'am, shall I read out one question from YouTube? Asma ma'am, till madam joins, shall I read out the question?
Asma ma'am, shall I read out the question from YouTube? Yes, yes, please, please. Oh, yeah. There's Gausia Begum Saiba madam. She wants to know, like, but when we are going for test, I heard if we do not have corona, but still they are keeping us with corona patients, and we can't be at home because it can spread to others. So what can we do? See, आप अगर टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, you are going, okay, please unmute Dr. Syed Zubair also. The host, I request the host, please unmute Dr. Syed Zubair. जी, thank you madam, thank you. Okay. जी मैम. जी. So shall I take this question, doctor? Yeah, please madam, please. जी, तो हम लोग जब टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो हम लोगों को टाइमिंग्स मालूम होना चाहिए, व्हाट टाइम वी मस्ट गो. गवर्नमेंट टेस्टिंग सेंटर्स अर्ली मॉर्निंग ही रहते हैं और वहाँ टोकन दिया जाता है. लोगों में अवेयरनेस नहीं होने की वजह से करीब ठहरते हैं, लेकिन आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ 6 फीट अपार्ट ठहरना है. अब आप ये आदत बना लीजिए, आइंदा 2 साल तक कम से कम दूरी इख्तियार करना, करीब क्राउडिंग कंजेशन नहीं करना है. चाहे टेस्टिंग के लिए जाएं, लैब को जाएं, तरकारी कोश भाजी किसी भी चीज के लिए जाएं, तो लैब्स में भी आपको डिस्टेंस के साथ रहना है, मास्क लगा के जाना है, ग्लव्स पहन के जाना है, और कहीं पर भी इस दौरान अपने नाक मुंह में हाथ नहीं डालना है. That is important, okay? And then you will not be infected. अब 100 पेशेंट आ रहे हैं तो उसमें से 40 पॉजिटिव रहेंगे, 60 नेगेटिव रहेंगे, तो जाहिर सी बात है आपको डर होगा. प्राइवेट टेस्टिंग लैब्स भी हैं जहां आपके घर पे भी आके सैंपल्स लिए जाते हैं, वहां भी आप टेस्ट करा सकते हैं. मगर ये सब बातें सोच के टेस्ट कराने से पीछे मत हटिए. दिस इज इम्पोर्टेंट. Jazakallah ma'am. The next question is from Rauhan Siddiqui. Will COVID come in animal bodies also? This is a child, I feel, student. A big question on the occasion of Bakrid. जी डॉक्टर साहब, मैडम shall I? Yes. जी मैडम, मैं बोलता हूँ. तो recent studies तो रोहन आई थिंक चाइल्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछे हैं, आई थिंक बकरीद के हिसाब से. प्रॉब्लम क्या है, रीसेंट स्टडीज तो नहीं है कि कोई एनिमल से किसी को लगा है या कोई ह्यूमन से कोई एनिमल को गया है, बट अब चाइना में बोलते हैं कि इट केम फ्रॉम बैट्स एंड देयर आर सो मेनी स्टडीज, बट नाउ इंडिया में तो सिर्फ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर ही है. सो इम्पोर्टेंट, अब बकरीद का इम्पोर्टेंट ये है कि अब बकरों की जैसा मंडी लगती है, खरीदने जाते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है, वहाँ रिस्क फैक्टर जानवर से ज्यादा इंसान को इंसान लगने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसलिए ऐसी सोशल गैदरिंग्स में ना जाएं. अच्छा होगा कि बस जो भी है, अब आई थिंक गवर्नमेंट भी आई थिंक रूल्स लाएगी क्या है, कैसा करना है बकरीद, या विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग कैसा कुर्बानी करना है, या आउट ऑफ द सिटी करना है या फार्म्स में करना है. आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर इन अनदर वीक. मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कोई जानवर से तो हमें नहीं लगता है, या हमारे से कोई जानवर को नहीं लगता है, इंसान से इंसान को लगता है. वो वही सबसे डेंजरस चीज है, पर इंडिया में वही ज्यादा फैल रहा है. ये ज़हरा मैडम कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं. नहीं, बिल्कुल सही बोले डॉक्टर साहब. मंडियों में प्लीज हुजूम मत बनाइए, एंड वी मस्ट स्प्रेड दिस मैसेज अक्रॉस ऑल द मुस्लिम कम्युनिटी. नो क्राउडिंग इन द टाइम ऑफ बकरीद एंड मेंटेन नीटनेस एंड क्लीननेस. टू इम्पोर्टेंट. बिल्कुल. Jazakallah ma'am. Jazakallah Dr. Saab. The next question is from Madam. Will corona affect aquatic animals again? Children are like subject topics, they are questioning us. Yeah, animal world and all. And will COVID-19 survive in water? There's one more question. Then you have the other is will wearing a mask really help us? And if there is no like vaccine for COVID-19, how will this end? Is a big question from a student. ये माशाल्लाह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ज़हरा मैडम, shall I? Yes, please sir. Madam, अभी जी मैडम. Request the host to kindly unmute Amtul Hai Fatima. She is unmuted. She can talk.
सकते Now I can. Thank you. Yes. वेलकम जी मैम। बोलिए डॉक्टर साहब जी। जी, तो अब वैक्सीन नहीं निकली तो क्या करना है? तो ये सबसे आई थिंक बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है, सब लोग पूछे तो। अब बहुत सारी रिसर्च चल रही है, हर कंट्री में चल रही है रिसर्च, कोई फेज 2 में है, कोई फेज 3 में है। अब आई थिंक सो मेनी पेशेंट्स भी मुझे पूछे हैं कि एक बार वैक्सीन निकल गई तो डॉक्टर साहब आई थिंक हम सब फ्री हो जाते ना। ये एक रॉन्ग थिंकिंग है, ये बहुत गलत है, क्योंकि वैक्सीन देखिए निकलेगी तो भी क्या है, ये आरएनए वायरस है, जैसा मैडम बोले, जहरा मैडम बोले आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस का खासियत ये होती है कि ये म्यूटेट होता है। म्यूटेट मतलब अपना जो कैरेक्टर है बदल सकता है। जैसा कैमिलियन, जैसा बच्चों को सिंपल समझाए तो कैमिलियन गिरगुट जो बोलते हैं अपन, रंग बदलता है, तो अपन पहचान नहीं सकते गिरगुट को अलग अलग रंग में रहा। तो वैसे ही ये वायरस का भी एक किस्म है जिसमें सडनली ये बदल जाएगा। अब जो वायरस जो स्ट्रेन की बनी है, अगर वो दूसरे स्ट्रेन की रहे तो आई थिंक इट इज इनइफेक्टिव, क्योंकि अब कितने की स्टडीज आए हैं। जो यूएस का जो स्ट्रेन है, व्हाइट हाउस स्ट्रेन है, वो अलग है। इटाली में जो स्ट्रेन है वो डिफरेंट है। अब सऊदी में जो मैं वहाँ काम किया हूँ, वहाँ स्ट्रेन वो डिफरेंट है। क्योंकि वो डिफरेंट क्यों है? वहाँ की मोर्टेलिटी बहुत कम है, यहाँ की मोर्टेलिटी 2 to 3% है, सऊदी में मोर्टेलिटी 0.7% है। तो ये कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे सीधा समझना ये बात है कि हम वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट होके ऐसा नहीं है कि बस छोड़ना नहीं है कि भाई वैक्सीन निकल गई अब हम सेफ है, नहीं। हमें प्रिकॉशंस कंटिन्यू करना है, जैसा जहरा मैडम बोले नेक्स्ट ईयर तक भी हमें वही सोशल डिस्टेंसिंग, वही मास्क पहनना है और वही चीज हमेशा फॉलो करना है। थोड़े टाइम तक ये सोशल गैदरिंग्स, ये दावतें, ये सब चीज रोकनी चाहिए। आई थिंक अगर ये सब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, ये सब चीज बहुत ही अच्छी तरह पब्लिक प्रैक्टिस करे, वायरस विदाउट एनी वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्सीनेशन तो आएगी, वैक्सीनेशन के बाद में बहुत लोगों को देंगे। वैक्सीनेशन अभी आई थिंक फेज 3 में है। अगर वैक्सीनेशन अगर बनने भी आई, 6 महीने में भी आ गई, उसके बाद में भी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होने टाइम लगेगा। मगर उससे पहले भी अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अगर प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी तरह रेस्ट्रिक्ट करें हम अपने आप को घर में, आई थिंक वायरस उससे पहले ही खत्म हो जाएगा। बस ये है कि पब्लिक समझना ये बहुत जरूरी है। आई थिंक जहरा मैडम आप कुछ ऐड करना है तो कह सकती हैं। हाँ, इसमें एक बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छी साइंटिफिक बातें पूछ रहे हैं एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर आल्सो लर्निंग एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड इंटरैक्टिव सेशन। I have just shared in the screen one picture for the students to have a look. So the students can see कि हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं एंटीजन से फाइट करने के लिए। लेकिन ये बात हम लोगों को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस है वो भी ज्यादा देर नहीं रहता। जब इन्फेक्शन आके अगर हम बच भी गए और एंटीबॉडीज डेवलप भी हो गए, तो वैक्सीन का भी सिस्टम वैसा ही रहता है कि हमको थोड़ा सा जो एंटीजन है वो हमको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता, पोलियो वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन। तो अब ये जो रिसर्च आई, इससे हमको जो बात समझ में आती कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमको बचाएगी, यानी हमारी बॉडी हेल्दी रहना, हमारी बॉडी को कोई दूसरी बीमारी नहीं रहना, तो फिर हम बचेंगे। तो सबके लिए ये मैसेज है, वैक्सीन का इंतजार करते प्लीज मत बैठिए। और अचानक व्हाट्सएप पे न्यूज आती है कि इटली में वैक्सीन मिल गई है, यूएस वालों ने वैक्सीन। प्लीज हमारी 99% हमारा फोकस हेल्दी बॉडी इसकी तरफ से। जी जज़ाकल्लाह मैम। Thank you, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन अब्दुल है फातिमा मैम, जी प्लीज रीड Ma'am, आउट। assalamu alaikum everyone. Ma'am, one question. Is the symptom same in children and adults, or is it any difference? जी डॉक्टर साहब अब मैं बोलता हूँ मैडम। सो आई थिंक मेरे पास स्क्रीन शेयर करने का एक है आई थिंक, मगर फिर मैं बोल देता हूँ, मैं ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सर तो आपके पास है, आपको को होस्ट अभी बना रहे हैं डॉक्टर साहब।
जी मैडम। आप को होस्ट हैं सर, आप शेयर कर सकते हैं। जी मैडम, एक मिनट। एक मिनट मैडम। ये आई थिंक शेयर नहीं हो रहा है मैडम। It's okay, sir. You can just आप बोल दे सकते हैं. No problem. ओके, मैं आई थिंक जी. Asma ma'am. Asma ma'am, can We can go with other questions by that time. do In the meantime, can we go for other questions? That is what I Yeah. was feeling. Zubair sir, with due respect to you, can we proceed with the next question until we get the slide share? Asma ma'am, shall we read out one more question? थोड़े 3-4 क्वेश्चंस क्लब कर दीजिए मैडम, ज्यादा क्वेश्चंस है और 10 मिनट्स में अपने क्लोज करना है। Yeah, we don't have much 3-4 time. क्वेश्चंस Ma'am, I'll read out 2-3 questions so that you can reply. How long does the virus reside in a patient's body? And is it true that the NIMS is probably releasing the vaccine on 15th August? So they want your perspective on that. And is it safe to send children to school if the government reopens the schools? Regarding the vaccines, I would Dr. Zubair को unmute कीजिए सफी। Sir, are you unmuted now? या मैडम, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। No problem. जी डॉक्टर साहब, Welcome. no problem। जी मैडम, so I think मैडम, I think you have answered that question वो बच्चों का। जी डॉक्टर साहब। No, Dr. Saab, you have to give like the symptoms in adults and children. Is it the same or different? जी, actually मैडम, last 3 months से I am seeing this maternity and children patients. So I have done so many emergency cases also here. मगर जितने भी patients बच्चे I think 9 years के below आए हैं, उन लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार सब चीज symptoms तो थे, मगर no patient tested positive for corona. There were 2-3 alhamdulillah, but 2-3 patients were there who tested positive. Even 1 महीना का बच्चा भी था, वो positive था, मगर alhamdulillah बच्चे को कुछ भी symptoms नहीं थे. And nothing, no treatment was given, and alhamdulillah they recovered nicely. अगर थोड़ा fever आया तो सिर्फ paracetamol syrup दिए थे, बस nothing else. alhamdulillah ये I think अल्लाह की रहमत है, 9 साल के बच्चों के बिलो जो भी हैं बहुत सेफ हैं बच्चे, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे हैं और कोई मॉर्बिडिटीज और मॉर्टेलिटीज नहीं है बच्चों में। मगर ये चीज नहीं है कि बच्चे नेगेटिव पॉइंट लें और बाहर जाएं और प्रिकॉशंस ना लें, मगर अगर वायरल लोड जो अपनी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा तो किसी को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हेलो, आप सुन रही हैं मैडम? जी सर। सो और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब इसके आई थिंक अगर बच्चे अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो रिसर्च के बारे में 4 चीजें हैं जिसकी वजह से आई थिंक बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्स्ट एक है एसी रिसेप्टर्स, आई थिंक जो बच्चों में जो कोरोना वायरस जो अटैच होता है वो डेफिशिएंसी होती है बच्चों में उसकी, और एक चीज है और एक एडीई मैकेनिज्म बोलते हैं जिसमें एंटीबॉडीज टू प्रीवियस कोरोना वायरस जो होते हैं अगर इन्फेक्ट हैं तो वो बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम्स उससे प्रोटेक्शन मिलता है। और एक है इमेच्योर एडेप्टिव इम्यूनिटी बच्चों में है जिसकी वजह से इससे भी प्रोटेक्शन मिलता है बच्चों को। और बच्चों में एक्चुअली पैदा हुए जब से आई थिंक दे हैव
so many infections होते रहते हैं, वायरल इन्फेक्शंस, रोटा वायरस, बहुत इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से आई थिंक वायरस टू वायरस कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से अगेन सार्स कोविड-2 जो वायरस है उसकी भी आई थिंक वायरस टू वायरस इंटरेक्शन की वजह से वो दूसरे वायरस डोमिनेट करते हैं कोरोना पे, और इसलिए सिम्टम्स जो कोरोना वायरस के हैं वो कम दिखते हैं। यही एक रिसेंट निकली है स्टडी, और यही 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से 9 साल के बिलो के बच्चों को इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो बहुत माइल्ड होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah. There are so many questions now. As मेरे वजह से डिले हो गया। सबकी एक्सपीरियंस है, Not at all, sir. Please don't पेरेंट्स say. को रिलैक्सेशन हुआ होगा क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो लाइव अपना एक्सपीरियंस बताया है तो मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत राहत मिली होगी, बट प्लीज दैट डज नॉट मीन प्रिकॉशंस नहीं लेना है। प्रिकॉशन तो बिल्कुल लेना है। अपन हीरो नहीं बनना है इस वक्त, अपन बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। जी, थैंक यू डॉक्टर जी। मैडम, नेक्स्ट क्वेश्चन। Ma'am, they are asking, is it airborne? हाँ, ये एयरबोर्न वाला सवाल हर जगह आता है। जी, everybody is देखिए asking. आपके ये वायरस बिल्कुल छोटा पार्टिकल होता है आरएनए का, तो इवन जो मास्क हम पहनते हैं उसमें भी हम 100% प्रोटेक्शन नहीं कह सकते, और पर्सन टू पर्सन अगर हम करीब कांटेक्ट में आते हैं या कोई पर्सन कहीं पे छींक के खांस के उस जगह से चला जाता है, तो जो एरोसॉल है जो 5 माइक्रोन से छोटे हैं वो हवा में अगर रहे तो फिर हमको वायरस हमारे माउथ से, नोज से अंदर एंटर होगा। तो जितना हो सके बंद सुपरमार्केट्स में या बहुत ही कंजेस्टेड प्लेसेस, Enclosed areas. जी. Ma'am, next question, is it true that many people are having death, many people are dying because of heart attack during this pandemic? So what do you think is the reason? जी, हार्ट अटैक से बहुत सारे अब बात हो रहे हैं। जी, कोरोना वायरस, जी 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 जी, दो एक सेकेंडरी इफेक्ट इसका ये भी हो रहा है कि हमारे ब्लड वेसल्स में छोटे छोटे क्लॉट्स बन रहे हैं। इस वजह से हम लोग डी डाइमर टेस्ट रेगुलर कर रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि हमारा खून में गाढ़ापन आ गया क्या, और ये भी पता चलता है कि क्या ये ब्लॉक कर देंगे जो हमारे मेजर वेसल्स हैं जो दिल को सप्लाई करते हैं, हार्ट को, लीवर को, किडनी को। तो इस वजह से ये टेस्टिंग हो रही है, और क्योंकि नई बीमारी है, 6-7 महीने पुरानी है, जो भी रिसर्च आ रही है उसको डॉक्टर्स आपस में शेयर कर रहे हैं। अब इसको ये माना जा रहा है कि ये मल्टी ऑर्गन डिजीज भी है, पहले लंग और उसके बाद अब सारे ऑर्गन्स को भी इफेक्ट हो। बिल्कुल। Thank you so much, ma'am. Then again, ma'am, Sana leaves are truly helpful or having adverse effects by using it? Please help. By Aisha Fatima. जी, डॉक्टर साहब आप बताइए। अब सना आई थिंक मेरे को किसको आई थिंक इंग्लिश में बोले तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा जी, सना का पत्ता इस्तेमाल करने से मैं सर पूछ रहे हैं पेरेंट्स के नहीं, सना का पता इस I don't know, sir, in English. Sir, this is some leaf people are using regularly, और काफी लोगों को इससे okay, this is Ayurvedic, I think. WhatsApp से मालूम हुआ है, but there is no research, please. No research, no proven research. Okay. जी देखिए पेरेंट्स, इसका कोई अभी Senna leaves are majorly used for constipation, madam. Actually, exactly. How much I know. Exactly. How much I know. Exactly. So that I think nowhere it is related to COVID. हाँ, बिल्कुल सही बोले। Jazakallah, ma'am. There's one question on YouTube also, repeatedly asked by a student. जी. So Rohana Siddiqui, if we don't have COVID also and we are Muslims, then also they will target us only. Still, we should go to hospital. My last question, madam. It is repeatedly typed. So the child is very keen to know the answer to this. This question also reflects that the child is already mentally, in a state affected by this. That bias होगा उनके साथ,
तो आई वुड रिक्वेस्ट अवर चिल्ड्रन कि आप लोग अपने माइंड में इतनी अपनी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहिए, बी वेरी पॉजिटिव। और अगर किसी को आपसे बायस भी है तो यू शुड प्रूव योरसेल्फ। और ये पहले से अस्यूम नहीं करना चाहिए कि यहाँ मेरे साथ दुश्मनी होगी या यहाँ मेरे साथ बायस होगा। अपने बिहेवियर से, अपने एटीट्यूड से हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारा कैरेक्टर, बिहेवियर, पोलाइटनेस, सॉफ्टनेस, ये सब हम अंदर पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। बीइंग अ मुस्लिम वी मस्ट रिफ्लेक्ट हाउ अ मुस्लिम शुड बी। और हॉस्पिटल जाने से बिल्कुल डरिए, हम लोग को पूरी है, हम नहीं है में जाने खुशी खुशी जाएंगे घूमने, बट हॉस्पिटल कोई नहीं जाना चाहते, लेकिन जरूरत जब पड़ती है तो जब जाना पड़ता है। सो डोंट थिंक लाइक दैट। ओके मैम, अनदर क्वेश्चन। एक पॉइंट ऐड करूंगा मैडम जी जी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक पॉइंट ऐड करूंगा। आई थिंक बहुत सारी सोशल मीडिया पे यही बताया जा रहा है कि आई थिंक मुस्लिम पेशेंट्स जब भी हॉस्पिटल जा रहे, बेड्स नहीं मिल रहे और उसकी वजह से खाली हिंदू लोगों को दे रहे हैं बेड, ये वो आई थिंक बच्ची, आई थिंक कौन भी जो भी पूछे, आई थिंक दे आर मोर एक्सपोज टू दीज थिंग्स। मगर ये नेगेटिव थिंग्स आई थिंक नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल में जाओ, कोई भी डॉक्टर रहो, चाहे वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, एवरीवन इज ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स। अगर वो हॉस्पिटल में बेड नहीं है तो एक्चुअली बेड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई खाली मुस्लिम है बोल के उनको रोक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वैसा नहीं है। क्योंकि हम लोग भी हिंदू पेशेंट्स को देखते हैं और बहुत सारे हिंदू डॉक्टर्स भी हैं जो हमारे मुस्लिम पेशेंट्स को देख रहे हैं। इट्स पूरा बहुत अच्छा टीम वर्क है और सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इवन सो मेनी टीम कोविड रिलीफ नहीं और दूसरे भी एनजीओज हैं जिसमें बहुत हिंदू मुस्लिम मिलके बहुत सारे गरीबों की कोविड रिलीफ में मदद कर रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट के लिए या राशन किट के लिए बहुत चीजों में मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक पेरेंट्स को ये इम्पोर्टेंट है कि ये चीजें जो भी बायस्ड फीलिंग्स है ये निकालना चाहिए और घर में ऐसा नहीं बयान करना चाहिए बच्चों के बीच में। तो इट इज नॉट अ गुड पॉइंट। एंड सोशल मीडिया में जो भी बताया जाता है मैक्सिमम पॉइंट टाइम वो नेगेटिव होता है, तो प्लीज ऐसा ना सोचे। थैंक यू सो मच सर। विल द कोरोना स्प्रेड बाय टचिंग अ डेड कोरोना पेशेंट? बिल्कुल मैडम, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। लास्ट 3 पेशेंट्स व्हाट आई एम ट्रीटिंग नाउ, ऑल उन लोग को ऑलरेडी कोरोना लगा। कैसे बोलते, वो लोग कोई किसी की मैयत में गए थे, किसी को तदफीन किए और वहीं से लगा है उनको। और जब बोला कि भाई क्यों, बोलते नहीं मेरे खालू थे, मेरे चाचा थे, मेरे जो थे, तो इमोशनल अटैचमेंट होता है और गुस्ल देते टाइम पूरे छींटे उड़ते हैं और बहुत उसकी वजह से अब अफेक्टेड हैं बेचारे। थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रिकवरिंग बट स्टिल दे आर रिग्रेटिंग। ये समझ रहे हो आप? ये इम्पोर्टेंट है कि अब नहीं करना चाहिए था। अब एहतियात जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। माशाल्लाह कोविड रिलीफ टीम के बहुत लोग हैं और एक्सेस फाउंडेशन के भी लोग हैं जिसमें आई थिंक कैसा तदफीन करना है, क्या है, बहुत गाइडेंस दे रहे हैं। पीपी किट्स पहन के गुस्ल देना है, तदफीन करना है और कम से कम लोग रहना है तदफीन के टाइम और नमाज जनाजा के टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा मैडम प्लीज यू कैन ऐड। हाँ, इसमें ना कुछ लोग इस तरह की गफलत में भी हैं कि नहीं उनका डायलिसिस पे थे और इंतकाल हो गया वो पेशेंट का, तो सस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, जिनके पास पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं रहती और इंतकाल हो जाता, यानी कि अभी दवाखाना नहीं गए, टेस्ट नहीं कराए, लेकिन बुखार आया दूसरे दिन इंतकाल हो गया, या हार्ट अटैक हुआ दूसरे दिन इंतकाल हो गया, मतलब उसी वक्त हो गया। इसको हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी में सस्पेक्ट कहते हैं। हो सकता है इनको कोविड हो। तो दोनों के लिए, फॉर बोथ ऑफ देम, जो पॉजिटिव हो और जो सस्पेक्ट हो, मैयत में पूरा वही एहतियात करना चाहिए। वी कैन नॉट टेक चांसेस। और अक्सर लोग अगर ये बोले नहीं 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 कोरोना के पेशेंट नहीं थे, हम गए, गुस्ल दिए, इंतकाल, उनके सारी चीजों में हम पार्टिसिपेट करें। आप देखिए नेक्स्ट 14 डेज में जो लोग साथ में रहेंगे उनमें कई लोगों को सिम्टम्स आना शुरू होंगे। तो प्लीज ऑल सस्पेक्ट्स, ऑल पॉजिटिव्स, उतनी ही एहतियात कीजिए। एहतियात करिए प्लीज। दूर से भी दुआ कर सकते हैं मगफिरत की। अपने आप का हाँ, फोन पे ख्याल रखिए प्लीज। आप घर से खाना पका के भेज सकते,
फोन पे बेशक। पुरसा दे सकते, जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और घर के बुजुर्गों को तो घर से निकलने ही मत दीजिए, बच्चे रोक के रखिए। Ma'am, one question repeatedly being asked at least 10-12 times. If a recovered person, is there a chance that he will be affected again? चांस है। एक हो चुका फिर से हो सकता क्या उनको सेम पर्सन? अगेन मैडम हो जैसा सक- बताए हैं वो स्लाइड सेम, अगर आई थिंक मैडम वही 4 वीक्स में जैसा आप यूजुअली बोल रहे हैं 8 वीक्स तक एंटीबॉडीज रहते हैं। जी अब एक बार एंटीबॉडीज गायब हो जाएंगे अपनी बॉडी में से, और अगर कोई वायरस का दूसरा स्ट्रेन रहेगा फिर इन्फेक्शन हो सकता है। सो प्रिकॉशंस हमेशा ही रहना है। How long does it take for corona symptoms to be seen in a patient? में 14 days, हो फिर 21. रस्मेर इन्फेक्शन होता तो प्लीज सेफ रहिए। Ma'am, next question. How long does it take for corona symptoms to be seen in a patient? 14 to 21 days. Sir. हेलो Hello. Hello. जरा मैडम। जी आप बोलिए सर। हाँ, सो एक्चुअली अब 14 डेज जो क्वारंटाइन बोलते हैं हम, वही चीज है। ये 14 डेज में कभी भी आ सकते हैं सिम्टम। क्लासिकली फर्स्ट 3 डेज में भी आ जाएंगे सिम्टम्स। तो ऐसा आप सेम बोले जैसा बुखार, खांसी, फैटीग या लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट, कभी भी आ सकते हैं। इसलिए 14 डेज ये क्वारंटाइन में रहो बोलते हैं हम लोग। जिसको भी अगर कॉन्टैक्ट हिस्ट्री हो या किसी को भी पहले कोई जहाँ बहुत प्रोमिनेंट था जिससे से कांटेक्ट हुआ है, तो उनसे अगर रिलेटेड है, या नहीं तो थोड़ा फीवर आया तो 14 डेज में रहो। आई थिंक 14 डेज में जितने भी सिम्टम्स हैं और कुछ भी सिवियरिटीज है पूरे आ जाती हैं, और इंशाल्लाह उसके 14 डेज के बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कॉमॉर्बिडिटीज ना हो, तो फिर वो कम भी हो जाती हैं। तो आई थिंक फर्स्ट 14 डेज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। Sir, one more question, like alternative medicine, homeopathic medicine से effective है क्या, लेना चाहिए क्या? अब मैडम ये है कि आई एम प्रैक्टिसिंग एलोपैथी, तो आई रियली डोंट नो अबाउट एनीथिंग अबाउट होम्योपैथी। सर मैं इसका जवाब दे देती हूँ, आपको परेशानी में नहीं डालती हूँ। कि अगर रहता होम्योपैथी में तो इलाज हो जाता था ना माँ। हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह ने शिफा देना है, मगर फिलहाल तो दवा नहीं है। कौन सी भी होम्यो में है ना आयुर्वेदिक, कोई में नहीं। अब माशाल्लाह हैदराबाद में बहुत यूनानी होम्योपैथी बहुत ज्यादा चलता है उन सिटी में, तो और अपने अपने घरों में एक्चुअली। सो आई थिंक फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग इट्स गुड पॉइंट, बट ट्रीटमेंट के पॉइंट पे आई डोंट एग्री ऑन दैट। जी इसमें नहीं, पेशेंट्स भी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होते हैं, तो माइल्ड सिम्टम्स में आप घरेलू नुस्खों से और आप यूनानी कुछ कर लेंगे। लेकिन अगर मॉडरेट से सीवियर केसेस हैं तो वो टाइम पे ये हिमाकत और बेवकूफी हमको नहीं करना है कि हम ये सोचेंगे कि ये काढ़ा पिएंगे या ये नुस्खा इख्तियार करेंगे, तो दैट इज रिस्किंग लाइव्स। अपने घर वाले हमारे लिए बहुत अजीज हैं, तो ये बेवकूफी मत कीजिए, खास तौर पे वो पेशेंट्स के लिए जो सीवियर डिग्री पे हैं। और हैदराबादी काढ़ा आई थिंक इज मैडम, हैदराबादी काढ़ा बहुत फेमस है, बहुत मशहूर है सर जी। और अपने इवन सीएबीजी पेशेंट्स के ब्लॉग्स भी दूर करता है, सुना है। आई डोंट नो बट सुने नहीं सर, मैं भी 2 बार पी, मगर ना दुबली हुई ना कुछ दूसरी चीज कम हुई, तो अब मैं छोड़ दी। आप दोनों डॉक्टर से रिक्वेस्ट है, एक बार विटामिन सी एंड मल्टीविटामिन, जिंकोविट एंड ऑल, जस्ट टू स्ट्रेंथन द इम्यून सिस्टम, एक बार आप लोग प्लीज बोल दीजिए। मैडम जरा lot मैडम of parents are asking any tablets to be taken to prevent lung infection ले or सकते हैं मैडम। मल्टीविटामिन, जिंकोविट, जिंको प्लस, जिंको मैक्स, कोई भी मल्टीविटामिन, बिप्लेक्स फोर्ट, उसके साथ सिरप भी आता है बच्चों के लिए, दे सकते हैं। और इसके साथ विटामिन सी अगर आपको ना मिले तो मौसम्बी का जूस है, लेमन जूस है, वो आप ले सकते हैं, लेना चाहिए, इट इज गुड। ताकि हमारे बच्चे बहुत चूजी, सेलेक्टिव भी रहते, कुछ खाते कुछ नहीं खाते, तो सब चीजें लेना चाहिए। पूरे फ्रूट्स अच्छे हैं, बनाना लीजिए आप डेली, इट इज इम्पोर्टेंट। और इसी तरीके से कैल्शियम टैबलेट्स ले सकते हैं सुबह, सनलाइट, विटामिन डी आपको मिलेगा 7-8 बजे जब धूप निकले, क्योंकि आजकल क्लाउडी सीजन है, 15 मिनट सुबह की धूप में बैठिए, विटामिन डी मिलेगा। दूध पीना है, कैल्शियम टैबलेट्स लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। I hope that parents are noting down all these important
instructions. Fatima Ma'am, ma'am, for the, yes, Tasin ma'am. there's a question from Khansa Konain. Is it true that some doctors are killing some patients deliberately Astaghfirullah, by giving astaghfirullah. injections? I think, ma'am, we should not encourage such questions also, I feel. Yeah. I think we Let's should not discuss all that. I think I will answer this one. मैं Yeah. question clear करूँगा जी, मैडम, क्योंकि जी, because please. I deal with ICU, so बहुत situations है अपने मुस्लिम लोगों में ही. I think हम काउंसलिंग करते हैं, वे लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब वो वेंटिलेटर पे है, जबरदस्ती चार्ज कर रहे हैं वो पैसे बोल के. So what I do is usually उनको लेके जाता हूँ, लेके उनको स्टेथोस्कोप देके कान के हार्ट बीट सुनाता हूँ क्लियरली, seriously. And I would, because you know personally जब तक देखे नहीं समझते नहीं, तो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स अपने जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने आईसीयू में हैं, अपने मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा गलत काम. कोई भी जबरदस्ती को किसी को भी वेंटिलेटर पे लगा दे नहीं. मगर हार्ट बीट जब तक है, कोई भी हमें अब इंडियन पिनल कोड से तो कोई अलाउड नहीं है कि जब तक हार्ट बीट चल रही है वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करें. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है. अब शरिया के अलावा बहुत मौलवियों से डिस्कस करके ये बहुत पॉइंट आए हैं कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन खराब है और बहुत प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन हो रहा है 1 महीने से ज्यादा, और पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब सिर्फ कोमा में है, जहाँ ब्रेन डेथ हो गया है, वैसे स्टेज में निकाल सकते हैं. मगर मोस्ट ऑफ द टाइम अब कोरोना पेशेंट जैसे हैं ARDS में जब पहुंचते हैं 4th स्टेज में, तो वेंटिलेटर पे लगाते हैं. तो अगर यंग है तो ऐसे केसेस बहुत हैं जिसमें प्लाज्मा थेरेपी हुए देके वेंटिलेटर से भी बाहर आए हैं पेशेंट. ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर पे डालते ही खत्म हो जाएंगे. बस आप लोग दिमाग में ये मत डालिए कि अगर वेंटिलेटर पे पहुंच गया तो पेशेंट मर गया और जबरदस्ती हॉस्पिटल वाले चार्ज कर रहे हैं और डेलिबरेटली कोई डॉक्टर मार रहा है. नहीं, अल्लाह माफ करे, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और इतना पढ़ते हैं, बस कोई खिदमत खल्क हो और ऐसा कोई गलत काम ना हो, बस हर नमाज में ये दुआ करते हैं, बस अल्लाह माफ करे. एंड ये डॉक्टर्स के सिलसिले में एक नेगेटिव जो इस तरह का प्रोपेगेंडा है, ये भी इससे पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप थोड़ा डैमेज हुई है. तो वी हैव टू बिल्ड अप ट्रस्ट. अल्लाह पे पहले भरोसा करना है, फिर जिसके पास अपन इलाज करा रहे हैं उन पर एतमाद करना भी जरूरी है. Ma'am, please, doctors are doctors. Please don't think otherwise. All doctors are doctors. No Hindu, Muslim, Christian. So because they definitely. Shall we conclude, madam? It's already 8:45. Yes, madam. I would like to add one thing here. सब लोग हम लोग डॉक्टर्स बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि स्टे होम स्टे सेफ वाला चीज है. लेकिन अगर पब्लिक अगर सोचे, जैसा ये क्वेश्चन अराइज हुआ है, दिस वाज बिकॉज दे आर हियरिंग इट. So it is a good thing that we clarified it. It's not that with what they are thinking. तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ा है. विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल द डॉक्टर्स, तो पहले हमें ये सोचना है, जब सब लोग हम लोग घर में बैठ के सेफ रहो बता रहे हैं, तो फिर डॉक्टर्स जो है हॉस्पिटल्स में है आपके साथ, दे आर नॉट एट होम, दे आर फॉर risking their lives. They are risking their lives. एंड ये सब कर रहे हैं डॉक्टर्स जो आगे आए हैं. और हेल्पलाइन नंबर्स है 24/7. दे हैव देयर फैमिलीज, दे हैव देयर ओन हेल्थ, and we are very much worried about doctors' health. And love, we always pray for all the doctors community to keep them safe and healthy, because if they are safe and healthy, then only treatment can be done. And the soldiers at front, I would say, are doctors here. So parents, I request you all and the students also. हो सकता है घर में बात कर रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में ऐसे बातें आ रहे हैं या पेरेंट्स कहीं सुन रहे हैं. तो आई थिंक डॉक्टर साहब has clarified that very nicely. माशाल्लाह सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इसका. और अस्मा मैडम, and with due respect to all the doctors community, हमसे कुछ गलती हुई तो माफी चाहते हैं publicly. नहीं मैडम, बिल्कुल. अल्लाह for all your service. जी. मैम, थोड़े पेरेंट्स लेट ज्वाइन हुए हैं, डॉक्टर जहरा मैम. So quickly, I just want to brief them what you said. So first thing is how to be safe. Wash your hands regularly, more times, then wear your mask, then go for early detention, no social gathering, have खुशी हो या गम हो, then exercise properly every day, then open doors and windows for fresh air, and good ventilation should be there in the house. Don't close everything and sit. Eat well, sleep well, drink a lot of water, and take care of the old senior citizens, and improve your immunity and eat everything.
to fight back COVID. This was the briefing I wanted to do. This is what doctors told. Please remember. And we have our free Zoom clinic. There are a lot of questions, but the doctors are not having time. I'm extremely sorry. You can, every day you can log in to the Zoom free clinic and ask your questions. Thank you so much. Zoom clinic number, I would repeat it. जी, आप share कर दीजिए मैम, screen share I कर. have also typed in the chat, and on YouTube also I've did it, and inshallah I'll be sharing it with the school principal also, so that madam can also share it with the students and parents. But still I would like to repeat lastly the Zoom clinic number, जहाँ पर doctors लोगों के लिए free service दे रहे हैं. यहाँ पर कोई bill नहीं है. ठीक है? So please avail this opportunity. It's 7981375626. I repeat, 7981375626, and the password is Z capital Z small OOMCLINIC. And Jazakallah for the beautiful section. Jazakallah. Jazakallah. Ma'am, just let me give me 1 minute to thank Dr. Asma and Dr. Sayyid Zubair on behalf of Al-Falah School. MashaAllah, Alhamdulillah, it has been a very good session, a very informative session. The speakers of today's session have cleared so many doubts and have given us a lot of encouragement and assurance. May Allah grant you a great reward for this. And Dr. Asma Zahra, I would like to especially thank you for observing our students' discipline and punctuality at the beginning of the session, and appreciate it for that. Jazakallah khair. I thank the co-hosts as well, Mrs. Tehseen Sakina and senior educationist Mrs. Amtul Hai Fatima, Principal Mount Mercy School, and all the members of the organizing committee. Let's end the session with the supplication to Allah subhanahu wa ta'ala to accept the efforts and service rendered by the team COVID relief. May Allah reward them for their efforts and dedicated service. And may Allah bless all who are gathered here for today's session with good health and protection from the coronavirus. Ameen. Let us also pray for all those who are suffering from it. May Allah grant them shifa. Jazakallah khair. It's been a really very nice session. Thank you so much, doctors. Thank you so much. Dr. Saaba, thank you so much. And Zubair Saab, बेहद शुक्रिया आपका. It was wonderful to hear you. Dr. Asma ma'am and Zubair sir. Asma ma'am. Asma ma'am. Thank you, madam. Thank you, Zahra madam. Principal madam and Vice Principal Madam Samina Subhani ma'am of Al-Falah High School, dear parents and the students. Thanks.